Hello everyone, it's Ian Sikari, and as we were talking about the fundamental rights, so today we will see them in detail. So we have a Charter of Fundamental Rights in the Part 3rd of Indian Constitution, which provides the individual rights as well as the societal rights to establish the political democracy in India. Article 14 to 18. Um, so before we delve into the right to equality, to start from Article 14 to 18, let me just let me just give the light of the two very famous articles, which is Article 12 and Article 13. So Article 12 is part of the Part 3rd, which talks about fundamental rights. Article 12 talks that what is the definition of state, what is the definition of government agency, because it is very important to identify the state and then to provide the fundamental rights so as to demarcate the thin line between individual and then the state. So Article 12 talks about what will constitute state, यानी सरकार किसे माना जाएगा, Article 12 ये बताता है. So we have the offices of President, Prime Minister, Council of Ministers, then judiciary, judicial offices, legislatures, parliament, panchayats, municipalities, PSUs, railway, then other government organizations like we have quasi-judicial bodies, election commission, UPSC, these bodies, constitutional, non-constitutional bodies, regulatory bodies like RBI, Quality Council of India. All these comprise in the definition of state. If there is a property of any PWD department, in the case of Delhi, we have DDA. In the case of Maharashtra, we have MDA. In the case of UP, we have UDA. In the case of Haryana, we have HDA. So all their properties will comprise under the Article 12. Then Article 13 talks Pravesh, about, yes, one question. We yes, can also say that the NGO that are being given subsidy or donation by the government can also come under the state under Article 12. yes, yes. Hmm. ठीक. But that aid should be very much substantial aid, not a kind of minimal aid. That aid should be very much profound so as to identify that the management and the regulations of the NGOs are in the hands of the government itself. जैसे एग्जाम्पल में अगर बोला जाए तो इंडियन साइंस कांग्रेस that has that are run by the that are given aid by the DST Department of Science and Tech. तो सो बोल Yes, सकते हैं. ठीक. yes. Okay. We have universities also, like um, we have central universities, then we have state universities, and then we have the colleges and the universities which are substantially funded by the government, by the local government. They are also the part of state. We have at the basic level primary healthcare center, mohalla clinic, dispensary. They are also veterinary hospitals. They are also the part of state. So all the public thing will be the part of state. And then Article 13 talks about that any law which is in derogation of fundamental rights, which are mentioned from Article 14 to 35, will be null and void by the judiciary when it exercises the judicial review power under Article 32 in the case of Supreme Court and under Article 226 in the case of High Court. यानी Article 13 भी intangible फॉर्म के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है. So if a question appears in the exam that do Article 13 talks about judicial review, so the answer will be correct. It talks about the judicial review, though it is not clearly mentioned in the Constitution. Article 13 talks that any law which is in derogation of fundamental rights will be contravened by the judicial reviewing power by the judiciary. Now, one important question comes under this article, Article 13, is about the type of law. So as we know that we have statutory law, we have constitutional law,
and we have Constitutional Amendment Act. So though I'll merge the Constitutional Law and Constitutional Amendment Act. And then we have the ordinary law of the land, that is called the statutory law, which is built or which is made by the parliament in the case of union and by the state legislatures in the case of the state government. So any ordinary law which is made by the parliament and by the state legislature will be considered under the Article 13. No place for Constitutional Amendment Act in the Article 13. Because if the Constitutional Amendment Act will come under Article 13 categorization, so that will prevent Parliament in the implementation of the directive principles. When we talk about which one is up, directive principles or the fundamental rights, so we have three of famous cases like Champakam Durai Raj in case of 1951, we have Minerva in case of 1980, we have Keshavan Bharti case of 1973, we have LIC India case 1995. In all these cases also, the Supreme Court timely mentioned that directive principles are also crucial in maintaining the political socio-economic democracy. So that is why the parliament will go for the DPSP and judiciary will go for the fundamental rights upholdness and the superiority. But Supreme Court laid down this idea that both will go hand in hand and in a co-harmony manner to establish true nature of democratic setup in country. Then, okay, can you stop the recording for a minute, please? So, the constitutional amendment, can you please stop the recording? So, the Supreme Court laid down that directive principles and fundamental rights will go hand in hand to establish the democratic setup in the country, and in the respective verdicts, they have ensured this. Will come detail on them. So the Constitutional Amendment Act will not come under the Article 13, but only one provision cited in the Keshavan Bharti case in 1973, that all the law which have been done under the category of Constitutional Amendment Act till now, before 73, will not be considered under Article 13. But post 1973, even the Constitutional Amendment Act will be considered in the power of judicial review, but still it will not come under Article 13. So abhi ke liye ordinary law, statutory law, parliamentary law are the part of Article 13, and they can be considered null and void if they are violating the fundamental rights. But Constitutional Amendment Act will not be considered under Article 13, but is subject to judicial review power by the Supreme Court as well as by the High Court under Article 15. So now we are starting. So any question of anyone to host, so you may ask, otherwise I'm moving forward. Then we have the fundamental rights, which are starting from Article 14 to 18, which provides for right to equality. Then 19 to 22 talks about freedom of liberty and personal freedom. Then 23 and 24, you have rights against exploitation, and 25 to 28 against the religion. 29, 30 for the cultural and minority rights, and 32 is constitutional remedy. So he or she may ask here that where is Article 31 then? If we have the chronology from Article 14 or Article 12 to 35, then where is Article 31? So Article 31 was a fundamental right known as the right to property, which is removed from the Part 3rd and put in, I think, Part 13 as a legal right. So now we'll talk in detail about the fundamental rights. So number one says right to equality. So it says that it says 3 to 4 things. Right to equality. Equality before law and equal protection of law. Equality before law means that there is only one ordinary law in the country, and in the front of law, everyone is equal. You are a judge or you are a beggar, you will be considered as equal in the eyes of law. When you are talking on the procedural aspect, when you are talking on the substantive aspect. If you are a brigadier in the army,
and if you're a constable in the police department, you will be considered as equal in the eyes of law. So this is a simple meaning that equal before the law, that law will give you the equal status, the equal power, the equal representation, and the equal chance for your promotion, for your capacity development, and for your healthy living being. That is a simple meaning of equality before law. And equal protection of law, which simply means that equality before law is promoting negative equality, which simply means कि law के हिसाब से सब समान है, law के लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है पॉजिटिव इक्वालिटी। अब पॉजिटिव इक्वालिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर यही मतलब है कि अगर आम तौर से देखा जाए तो लॉ के लिए सब समान है, लेकिन इक्वालिटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी आप लॉ के सामने कुछ आपकी जो पावर्स हैं, कुछ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको मद्देनजर फुल इक्वालिटी नहीं हो सकती है, इक्विटी हो सकती है। जैसे कि अगर इक्वल बिफोर लॉ के हिसाब से हम चलें तो अगर आपको कोई अटैक करता है तो इक्वल बिफोर लॉ ये बोलता है कि आप भी उसे अटैक कर दीजिए। अगर आपकी जान माल का हानि ज्यादा है और पुलिस को बुलाने में टाइम लगेगा तो आप भी उसको हर्ट कर दीजिए। ये बात करता है इक्वल बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बात करता है कि अगर आपको जान माल का हानि है तो आप पुलिस वाले को बुलाइए, तो पुलिस वाले की जो पावर्स हैं उस टाइम पर वो उसको शूट भी कर सकता है, आप उसको शूट नहीं कर सकते। वो एक एग्जाम्पल हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी लॉ के हिसाब से जिसको जो इक्वालिटी दी गई है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन इक्वल बिफोर लॉ में सबको एक नजर से देखा जा रहा है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में सबको उनकी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो सोसाइटी ने उनको असाइन की है, उनके हिसाब से उनकी इक्वालिटी देखी जाएगी। यानी वो पुलिस वालों को एक तराजू पर तोला जाएगा, लेकिन एक पुलिस वाले को और एक आम इंसान को अलग तराजू पर तोला जाएगा दूसरे वाले कंसेप्ट में। पहले वाले में दोनों बराबर। अब आप मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चन है तो। ओके, then in the right to equality we have four type of right. Article 14, which I just mentioned, that equality before law and equal protection of law. Then we have Article 15, which talks about prohibition of discrimination on certain grounds like sex, place, birth. आप कहीं भी रहिए, आप किसी भी रेस के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आपके साथ कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी under the surveillance and under the supervision of the constitution and the law of the land. Article 16 बात करता है equality in the opportunity for public employment. यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वहां पर आपके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा, मेरिटोरियस होगा और आपको फुल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बट नाउ देयर इज अ कंसर्न इन आर्टिकल 16 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 जहां पर बात होती है रिजर्वेशन। तो ऐसा बोला जाता है कि रिजर्वेशन आने से तो आर्टिकल 16 हनन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी राइट्स हैं उनमें हम बात करते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की। जब इक्वालिटी की बात करते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अंडर आर्टिकल 16, तो हम बात करते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कुछ ऐसी कम्युनिटीज या फिर कुछ ऐसी सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिनकी जो हिस्टोरिकल कंडीशनिंग है वो इस तरीके की है कि उनको ऊपर लाने के लिए एक टाइमली मेजर उनको दिया जाए ताकि फुल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी जो हम बात करते हैं वो अचीव की जा सके। और वो तभी हो सकती है जब हम हिस्टोरिकल इनजस्टिस या फिर जो इनइक्वालिटी है, जो कास्टिज्म है, जो कास्ट रिडन सोसाइटी के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाए। और इसी के लिए आर्टिकल 16 के सब सेक्शन जो है वहां पर बात की जाती है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन होगी
इसको ऐसा भी बोला जाता है कि दिस इज अगेंस्ट द मेरिटोरियस प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है मेरिट, जिसकी जितनी मेरिट उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगी समाज में। लेकिन जब रिजर्वेशन को अंडर आर्टिकल 16 देखा जाता है तो इनको एज एप्रीहेंशन और क्रिटिसिज्म से भी देखा जाता है कि फिर तो मेरिटोरियसनेस दब गई। जब आपने किसी सेक्शन को उसकी कास्ट के बिहाफ पे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी दी, तो मेरिटोरियस कहाँ रही? बात उनकी भी कहना सही है, लेकिन यहाँ पर बात जो समझने वाली है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, इज दैट लेवल प्लेइंग फील्ड is the precondition for the meritorious system. If you do not have level playing field, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर ही पिट होल्स, पॉट होल्स बने हुए हैं, तो आप बात नहीं कर सकते हैं इक्वालिटी की। आप इक्वालिटी तब बात करिए जब सेम लेवल ऑफ पीपल हो, सेम लेवल ऑफ कंडीशनिंग हो, सेम लेवल ऑफ उनका डेवलपमेंट हुआ हो, सेम लेवल ऑफ उनकी कैपेसिटी हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैपेसिटी में फर्क है। लिबर्टी सबको है, तो मेरिटोरियसनेस दिखाई जा रही है, लेकिन बात हो रही है कैपेसिटी की। कुछ ऐसे सेक्शन है जिनकी कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बात की जाती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 16, जब हम बात करते हैं SC ST रिजर्वेशन, और अभी फाइनली हम जब बात करते हैं EWS रिजर्वेशन बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। Pravesh, यस so you were talking about the implementation of reservation in the public domain. That is why यस the Haryana government, which was mandating 75% reservation, similarly in Jharkhand and also Maharashtra, mandatory provision for reservation in the private sector, the High Court said that it is only for the public domain. और इसके कारण ही प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है इट इज ओनली फॉर द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्रवेश। यस along with that I want to add one more thing, that though it is written public here, but if any MNC also tries to eliminate all the other sections and tries to take only that particular community, that particular caste in that uh, private job, that will again the foundational uh, injustice by the people, and that will also be considered null and void. आप प्राइवेट स्फेयर में भी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि हम एक ही कास्ट को जॉब देंगे। दैट इज आल्सो द वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लिबर्टी, बिकॉज वाई वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आल्सो, जहां पर बात होती है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज ही क्यों ना हो, वहां पर इनइक्वालिटी ना हो। चाहे वो इनकम इनइक्वालिटी की बात है, चाहे वो कास्ट इनइक्वालिटी की बात है, एनी सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पब्लिक पब्लिक की बात करें तो प्राइवेट में अगर होता रहेगा तो फिर जो आपका रीजन है लेवल प्लेइंग फील्ड या कैपेसिटी डेवलपमेंट का, वो हो ही नहीं सकता। तो ये पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी उतना ही एप्लीकेबल है। आप लेकिन प्राइवेट में आप पब्लिकली ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कोई प्रोविजन कर दिया और उसमें आपने मेंशन कर रखा है रिटर्न फॉर्म में कि हम इसी कास्ट को इतना परसेंट देंगे, आप नहीं कर सकते। दैट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देन द थर्ड राइट अंडर आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी इज Article 17, which talks about prohibition of untouchability. As we all know that untouchability is what? Untouchability was a phenomenon where the people of certain section in the Indian society were considered as achut. They were not allowed to touch the upper caste. We have the cases in not only in the remote areas, but in the prominent cities, prominent villages of Delhi also, where the lower caste who were doing the manual scavenging work of the upper caste, who were doing the sanitation, hygienic work for the upper caste, they were not even allowed to reside within the villages. अगर आज के टाइम पर भी आप देखें तो गांव के अंदर जितने भी हमारे गांव होते हैं वहां पर भी एक लेयर है, लेयर ऑफ हैबिटेशन, कि जो बीच में रहेंगे वो अपर कास्ट रहेंगे, जो साइड में रहेंगे वो उनसे नीचे वाले रहेंगे, और जो गांव के बाहर जिनके घर होते हैं वो कुम्हार और आपके अलग अलग जो कास्ट होती है वो रहेंगे। तो दिस शोज दी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अनटचेबिलिटी जो आज के टाइम पर होता है। जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। जब उनको खाना भी उनको फेंक कर दिया जाता है,
दूर से उनके हाथों में लटका दी जाती हैं रोटियां। जब हम बात करते हैं कि उनके गले में स्पिट करने के लिए एक छोटी सी मटकी लटकाई जाती थी और कमर पे उनके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी कि जहां से वो निकलेंगे तो झाड़ू से वो साफ होता चलेगा, ताकि अगर कोई अपर कास्ट का इंसान वहां से गुजरे तो उसको प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट सोचने को ना मिले, उसको वो रोड क्लीन मिले, उसको ऐसा ना लगे कि यहाँ से कोई शूद्र गया था या फिर यहाँ से कोई चंडाल कम्युनिटी का इंसान गया था। तो उसी का वैसा नहीं है, मतलब परवेश वैसा नहीं है, पहले जरूर था, लेकिन अब इंडियन सोसाइटी में ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किए जाते। नहीं, वो रिचुअल नहीं था सचिन जी, पहली बात तो वो एक हाँ, प्रैक्टिस। मतलब वो इस तरह की अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं की जाती। वो मानते थे रिचुअल, बट ऐसे डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं है। चलिए, वो तो मतलब एक आप जनरलाइज बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ नहीं होता है। तो रिजर्वेशन जो हम बात करते हैं वो खाली इस चीज के तो लिए नहीं है। प्रवेश इसमें आप हम्म, हाईलाइट कर सकते हैं कि व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग अंडर आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 के अंदर में क्या किया जा रहा है। तो SC/ST एक्ट इसके अंडर में आया। फिर विमेन वेर अलाउड इन द सबरीमाला केस अंडर द राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ जजमेंट। तो ऐसे और भी प्रोविजन होंगे जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, वो like बता दीजिए। like we have prevention of cruelty act against the scheduled caste and scheduled tribe, that we have an act। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है एट पब्लिक प्लेसेस, वो हमारा ये एक्ट है कि आप जो है जो लोअर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है उसको पब्लिक प्लेसेस पर फुल एंट्री होगी, फुल एक्सेसिबिलिटी होगी। जैसा कि हम बाद में देखते हैं कि कुएं तालाब जो होते हैं वहां पर भी जो इनको टच नहीं करने दिया जाता था। और जो सचिन जी ने बात कही, हम जहां पर रहते हैं सचिन, हमें ऐसा लगता है कि वहां पर वो चीज नहीं होती तो कहीं नहीं होती, लेकिन बहुत सारे इलाके तो कहीं ना कहीं होंगे इंडिया में जहाँ ये चीजें होती होंगी। उस फॉर्म में ना होती हो, उस इंटेंसिटी के साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ ना होती हो, लेकिन कुछ फॉर्म में तो होती हो। और दूसरी चीज कि जो रिजर्वेशन का फाउंडेशन कंसेप्ट है बिहाइंड, वो ये है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी आए। आज के टाइम पर भी हम बात करते हैं साउदर्न स्टेट जिनका रैंकिंग काफी ऊंचा है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में, हेल्थ स्टैंडर्ड्स में, बेसिक अमेनिटीज में, वहां पर भी ऑनर किलिंग जैसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल देखिए, आप केरला का एग्जाम्पल देखिए, आप आंध्रा का एग्जाम्पल देखिए। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में ही बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर 10-10 साल से क्रिमिनल मैटर्स चल रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज, जहाँ पर अ, लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो हम नहीं कह सकते कि अ, आज तक भी ये चीजें कम हुई हैं। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में ज्यादा है। इसी वजह से रिजर्वेशन जो है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया बाय 2030। एंड दो इट वॉज अ टेम्पररी मेजर, आई वॉन्ट टू हाईलाइट, बट द टेम्पररी मेजर बिकॉज ऑफ टू थिंग्स गॉट परमानेंट मेजर, जो कि बढ़ता जा रहा है। एक तो लैक ऑफ रिफॉर्म्स इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, एंड सेकंड इज intermixing in the society which is happening, then fraudulent certification mechanism, and apart from that, there is a lack of political will to find a better alternative to provide the capacity development in the country. Then we have last right, that is Article 18 under the category of right to equality, which talks about no place for title, prohibition of titles. We have titles like Mansabdar, we have titles like Raja, Maharaja, Bhiraj, and all those hereditary titles. Constitution says that no person will be allowed to use such titles because they are the signs of historical heredity. आप पिछले जमाने में कुछ भी रहे हो, आज के टाइम पर आप इक्वल हैं। आपकी कितनी जायदाद हो, आपकी भी उतनी हैसियत औकात है जितनी एक गरीब इंसान की। तो इन प्रैक्टिकल इट डू नॉट वर्क, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस इज अ प्रोविजन। इसमें एक और बात की जाती है कि कुछ ऐसे टाइटल्स होंगे जिनको एक्सेप्शन माना जाता है, जैसे कि आर्मी के टाइटल्स हैं, डिफेंस फोर्सेस के टाइटल्स हैं, जो कि नॉमेनक्लेचर के तौर पे यूज होते हैं। और तीन हमारे ऐसे टाइटल हैं जैसे कि तीन नहीं, कुछ ऐसे हमारे टाइटल हैं जैसे कि पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। ये टाइटल तो हैं, लेकिन इनके ऊपर भी ये कंडीशनिंग लाई गई कि इनको एज अ प्रेफिक्स और सुफिक्स यूज नहीं किया जाएगा। यानी ना तो आप अपने नाम के आगे लगाएं, ना आप नाम के पीछे लगाएं। अगर आपको मिला है तो आप यही बोले कि भारत रत्न से सम्मानित श्री श्री, पद्म विभूषण से सम्मानित
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पद्म विभूषित और श्री ये, आप ऐसा नहीं बोल सकते, दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18. So we have these provisions in right to equality, and now we are heading towards right to freedom. प्रवेश, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। Yes. अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंडियन सिटीजन है, एनआरआई है, जो यूके में है, उनको टाइटल मिला है सर का, अलॉटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, तब वो टाइटल यूज कर सकते हैं पूछ करके गवर्नमेंट से, कि आप साइड में कोर्स में लिख सकते हो, मतलब इन जनरल? पहले तो आपको वो जो मिला है उसके मिलने से पहले, यानी अगर मान लीजिए कोई बाहर एनआरआई है, उसको जब टाइटल मिलेगा तो पहले वो डिक्लेरेशन होगा कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना आदमी को ये जो मोनार्क है या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसा टाइटल देंगे। वो परमिशन पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास आएगी। परमिशन। मिनिस्ट्री अभी ऑफ उसको यूज फॉरेन नहीं कर अफेयर्स, सकते कोई भी चीज हाँ में। नहीं मैं बता, हाँ। हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो परमिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफिस बोला जाता है, वो उसको कंसीडर करेगा कि किन कंडीशंस पे उनको टाइटल दिया जा रहा है, उसे इंडिया की सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी पे क्या खतरा है या क्या नहीं है। अगर वो उसको असेंट देते हैं तो वो उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसको विदहोल्ड कर ले तो वो नहीं यूज कर सकते। तो इंडिया में हम्म। नहीं यूज हो सकता, वहां भी यूज नहीं होगा अगर इंडियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं। ठीक। देन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू फ्रीडम. So here also we have 19, Article 19, Article 20, 21, and 22. So right to freedom, Article 19, it provides 6 forms of individual freedom rights, like um, freedom of speech, assembly, expression, association, movement, uh, uh, like all kind of freedom. So Article 19 talks that आपको जिस भी तरीके से आजादी का यूज करना है आप करिए, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी। आपको कोई भी एसोसिएशन बनाना है, एसोसिएशन का पार्ट बनना है, आप बनाइए। आपको किसी भी तरीके की स्पीच जो कि पब्लिक मोरालिटी को हर्ट ना करे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब ना करे, आप वो करिए। आपको कोई भी आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करनी है किसी की भी करिए, जैसे कि कार्टून भी होते हैं। तो दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 क्लोज 1। लेकिन उसमें भी आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। जब हम देखते हैं कि टैटूज में भी नाम आपका होना चाहिए, बिना नाम का आपका टैटू भी नहीं होता, तो डिस्क्लेमर होता है हर चीज में। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फंडामेंटल राइट्स आर प्रमोटिंग साइमल्टेनियसली। So Article 19 Clause 1 talks about these 6 forms of rights. प्रवेश, अब बात, यस, जो आपने बताया ना कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इट वाज डन अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर में, और डिफरेंट एरियाज ऑफ आया था, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, और एक था फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सब एरियाज पे आपके पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। इट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। हाँ नहीं मतलब वो तो पहले से ही है उसको। नहीं, फर्स्ट अमेंडमेंट में एक्स्ट्रा ऐड हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शन, अच्छा, फ्रेंडली स्टेट रिलेशनशिप, वो उस समय आया था, ठीक है। बाकी पहले से। तो पहला तो हुआ स्पीच एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सबसेक्शन ए, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप पॉलिटिकल स्पीच दीजिए, आप इंडिविजुअल स्पीच दीजिए, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके स्पीच दीजिए, आप किसी तरीके के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करिए, आप ड्राइंग बनाइए, कुछ बनाइए, लेकिन आप सब्जेक्ट टू हार्म प्रिंसिपल, आप किसी को हार्म मत कीजिए। यहाँ पर एक इंसिडेंट आता है अब हेट स्पीच का। तो ओशिका, आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, डू वी हैव एनी पर्टिकुलर लॉ इन इंडिया टू कंट्रोल हेट स्पीच? Hate speech is not defined, but there is a law, Section 295A, promoting of enmity between the two groups and communities, IPC के ठीक है। अंदर में वो, और भी लॉज तो है, तो एक एग्जांपल इसका हूँ। what constitutes hate speech is a matter of concern. अब पार्लियामेंट के अंदर अगर आपको स्पीच दें तो इज दैट सब्जेक्ट टू एनी सॉर्ट ऑफ रूल एंड लॉ? यस, पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ प्रोसीडिंग लॉ। अगर आप पब्लिक स्पीच दें
और उसमें आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स करें जो एनमिटी, जैसे जस्ट नाउ वाज मेंशन बाय ऑफिस 295 ए के अंदर आप एनमिटी नहीं क्रिएट करें। तो दिल्ली राइट ऐसा एक इंसिडेंट कॉन्टेम्पररी है जहां पर हेट स्पीच का प्रोमिनेंट यूज देखने को मिला, जिससे कि कम्युनल वायलेंस जो है अलग अलग दिल्ली के एरिया में देखने को मिली। उसके बाद आप बात कर सकते हैं फार्मर मूवमेंट या फार्मर एजुकेशन, जहां पर हेट स्पीच के इंसिडेंट देखने को मिले, जिससे कि जो है लाल किले जो कि एक हिस्टोरिकल एंशियंट मॉन्यूमेंट है, वहां पर भी राइट जैसी कंडीशन देखने को मिली और पुलिस और फार्मर्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ। असेंबली, आप कहीं भी असेंबल हो जाइए इंडिया में, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कई तरीके की हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असेंबली किस तरीके की होनी चाहिए। आप असेंबली जो है किसी भी तरीके की करिए, लेकिन जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दो तरीके से आपकी असेंबली को रोक देगा, बाय यूजिंग आर्टिकल 144 ऑफ सीआरपीसी एंड 140 सेक्शन 141। 144। हाँ, सेक्शन 141 एंड सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। यानी आपका असेंबली अगर ट्रैफिक को खराब करे, आपका असेंबली अगर गवर्नमेंट डिग्निटरीज उनके ऑफिस के अंदर काम हो रहा है उसको अफेक्ट करे, आपकी असेंबली अगर फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं उनके मूवमेंट को या फिर उनकी जो कॉन्वॉय है उसको डिस्टर्ब करे, आपकी असेंबली जो है वो लोगों को भड़काने का काम करे, आपकी असेंबली गलत चीज को प्रमोट करे, तो इतनी सारी जो फैक्टर्स हैं उनके बिहार से आपकी असेंबली को रोक दिया जा सकता है। आपको अगर असेंबली करनी भी है, अगर पब्लिक प्लेस पे आप करेंगे तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द प्री रिक्विजिट परमिशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। देन एसोसिएशन, आप कोई भी एसोसिएशन बना लीजिए, आप कोई भी धर्म एसोसिएशन बनाइए, आप कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाइए, आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, और जो फॉरेन फंडिंग भी अगर उसकी आती है तो उसको पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो अंडर फेम एक्ट। मूवमेंट, आप कहीं भी मूवमेंट करिए इंडिया में, लेकिन मूवमेंट वर्ड यहाँ पर भी यूज होता है और आर्टिकल 21 में भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट वर्ड यूज हो रहा है वो सिर्फ बात कर रहा है इंडिया के अंदर, यानी आप इंडिया के अंदर कहीं भी मूव करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऐसे हैं कि अगर आप ट्राइबल एरियाज या फिर जो हाँ एनवायरमेंट बफर जोन है, जो कंजर्वेशन जो है बफर जोन, आप वहां नहीं जा सकते। कुछ ऐसे साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है जहां आप नहीं जा सकते। जो लोग प्रोस्टिट्यूशन प्रोफेशन में है वो ट्राइबल एरियाज में नहीं जा सकते हैं, ताकि उनके अंदर कोई इस तरीके की मतलब कोई डिसीज ना अटैच हो, क्योंकि ट्राइबल्स का फिर इलाज करने में ज्यादा खर्चा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिलेगी। ये सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन राइट टू मूवमेंट में। देन कम प्रवेश, आता है रेजिडेंस। यस, एडिंग वन एग्जांपल, इनर लाइन परमिट इन द अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, वहाँ पर इनर लाइन परमिट है। यू हैव टेक द परमिट, देन यू कैन विजिट दोज स्टेट्स, 4 स्टेट्स। तो एक एग्जांपल इसका भी। यस। देन रेजिडेंस, आप कहीं भी जाकर घर लीजिए, लेकिन उसमें भी अब लिमिट है। आप अलग अलग स्टेट्स के डोमिसाइल होने चाहिए या फिर उस स्टेट के किसी डोमिसाइल इंसान को जानने चाहिए, तब आप वहां पर रेजिडेंस ले सकते हैं। इसका सिंपल सा कारण है क्रोनिक कैपिटलिज्म को रोकना, डिफोरेस्टेशन को कम करना, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन को रोकना। जब हम बात करते हैं हिली स्टेट की, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, वेस्टर्न घाट में बात करते हैं बैंगलोर और ऊटी की, तो यहाँ पर देखने को मिला है कि बहुत सारे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और जिसकी वजह से जो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी लैंड को बहुत सस्ते में खरीद लिया जाता है, और बाद में उसके जब रेट बढ़ते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। तो हर स्टेट के अपने प्रॉपर डिफाइंड रूल्स हैं। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड का एग्जाम्पल लें तो आप 350 गज ही ले सकते हैं अगर आप आउटसाइडर्स हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो आपको डोमिसाइल ही होना चाहिए। अगर आप हरियाणा के हैं तो आप 4000 एकड़ तक ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस चीज को कंट्रोल और रेगुलेट किया गया है ताकि प्रवेश, ये सारी चीजें ना आए। एक और बताइए। एग्जांपल है, झारखंड में सीएनटी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। उसमें भी आप बाहर के लोग नहीं ले सकते एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट के बाद। तो हर जगह की टू सेफ गार्डिंग द ट्राइबल कस्टम ट्रेडिशन ऐसा किया जाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है प्रोफेशन पर। कंटिन्यू।
रेजिडेंट। हाँ, अब हम बात करते हैं लास्ट सबसेक्शन क्लोज वन ऑफ आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन करिए, अगर आप ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, आपको नहीं है ब्राह्मण का काम करना, आप डॉक्टर बनिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप एक रिक्शा चालक के बच्चे हैं, आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आप बनिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कोई भी प्रोफेशन करिए, आपके लिए कोई मना नहीं है। एंड दिस इज हाउ आर्टिकल 19 गेट्स कंप्लीट। आर्टिकल 19 क्लोज वन प्रवेश सबसेक्शन सी डी ई। ये सोचिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है। आप अगर इलिसिट ड्रग्स में आप प्रमोट कर रहे हैं, आप टोबैको कंपनी में, आप फायर वर्क्स कंपनी में, तो अकॉर्डिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगता है। फॉर एग्जाम्पल ओपीएम फार्मिंग इन झारखंड डिस्ट्रिक्ट, कुछ जगह पे, कुछ उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में फॉर द मेडिकल, वहाँ पर भी प्रोफेशन के ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। ऑक्यूपेशन हजार्ड, फॉर एग्जाम्पल फायर वर्क्स इंडस्ट्री इन साउथ तमिलनाडु, और फिर अल्कोहल इंडस्ट्रीज, डिस्टिलरी एक्सेट्रा, तो ये सब में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है ओवर। और कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां पर मोनोपोली है, जैसे कि इंडियन रेलवे। आप इंडियन रेलवेज का अल्टरनेटिव नहीं कर सकते कि मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, चलो मैं भी एक रेल बना देता हूँ। आप नहीं कर सकते, इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। क्यों? न्यूक्लियर। हाँ, ताकि पब्लिक अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रहे। उसके बाद न्यूक्लियर की जैसे बात हुई,